પરંતુ જો આપણી સાથે અત્યારે શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ નું મેનેજમેન્ટ જોડાયું છે અને કંપનીનું જે ક્વાર્ટર છે એ ખૂબ જ સારું રહ્યું છે Q4 અને ખાસ કરીને FY24માં પણ એક સારું એવું પ્રદર્શન આપણને ખાસ કરીને જોવા મળ્યું છે. તો આવો એમના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ. શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર ગોપાલ કૃષ્ણન જે આપણી સાથે જોડાયા છે. ગોપાલ સર, વેલકમ ટુ CNBC Bazaar and very good afternoon. Sir, just firstly I just want to start with the update on the overall FY24, that it was a good performance from you in revenue. In case of revenue, PAT, everything is on a record level. What was the factors that went well during the financial year? Yeah, so it was a good quarter, good financial year for us. Thank you for pointing that out. We did very good volumes on a pre-sales basis, 4.6 million square feet, 2,362 crores sales value. But what triggered the big record high financial performance was the completion and handover. इस साल में हम लोग ने 3,000 कर हैंडओवर किया कस्टमर्स को. उसमें 1,400 homes were delivered in Q4 alone. That was a delta which changed the dynamics, helped us record good revenue recognition in Q4. 350 crore का revenue recognition हुआ. Therefore, that drove the whole financial performance to a new high. जी सर. सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे इन द ऑन द फ्रंट ऑफ एबिटा मार्जिन्स, बिकॉज वो हमें थोड़े अनचेंज देखने को मिले, थोड़ी सी बढ़ोतरी श्योर हुई है वहाँ पर, लेकिन क्या आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आप कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा आउटलुक बन रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप कितने ग्रोथ की उम्मीद लेके चल रहे हैं मार्जिन के स्तर पर? मार्जिन साइड में रेजिडेंशियल बिजनेस में आपका ग्रॉस मार्जिन मिड 30s नॉर्मली होना चाहिए. हम लोगों का मार्जिन एट अ ग्रॉस लेवल इम्प्रूव्ड इन FY24 फ्रॉम FY23, बट इन द मिड 30s. एबिटा मार्जिन मिड 20s में, PBT PAT मार्जिन इन द 8 to 10% रेंज. वही रेंज में जाने का एक्सपेक्टेशन है फॉर FY25 आल्सो. जी सर. एक चीज where the growth will come will be from the volume. This year we have set a target of 3,500 homes to be delivered by us. That will bring extra revenue recognition and therefore slightly higher margin or a same margin. We will have a much stronger PAT, PBT and EBITDA in FY25. That is the growth driver for us, volume improvement than actually margin expansion. सर ये वॉल्यूम इम्प्रूवमेंट जो होगा वो कोई कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट से आ रहा है, या चेन्नई, बेंगलोर, ओवरऑल एक साउथ के मार्केट से आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? मोस्टली बैंगलोर रिलेटेड है. As you know, we do large volumes in Bangalore and then next in Chennai and then lastly in Kolkata. We are entering the Pune markets now. FY25 का specific देखेंगे, Bangalore will contribute more than 65% of revenue recognition in FY25. जी. सर अभी आपने जैसा बता दिया, मैं उसके ऊपर भी पूछना चाहता था. पुणे में एंट्री कर रहे हैं, पुणे में अभी कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है या सिर्फ बातचीत के स्तर पे वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट है? नहीं, हम लोग का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन वी हैव साइंड. Undri is a micro market and we are entering the market with a new launch. लॉन्च का प्रिपेयरनेस चल रहा है, प्रिपेयरनेस वर्क चल रहा है. फाइनल अप्रूवल फॉर आवर श्रीराम्स एंडोर्समेंट एज अ DM partner. We are still awaiting certain final clearances from the authorities, local authorities. Once that is received, we think in the next 30 to 45 days we will be launching our new project in Undri. And simultaneously we are looking for more projects in the market because we think Pune is a very attractive market. क्योंकि ग्रोथ वाइज देखेंगे, बैंगलोर का एनुअल रेजिडेंशियल सेल ग्रोथ जो मार्केट का ग्रोथ है बैंगलोर में ज्यादा है. नेक्स्ट पुणे इज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिमांड. देयरफॉर वी थिंक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट. सेकंड इज पुणे इज वेरी सिमिलर टू बैंगलोर. सैलरी, द एंड यूज डिमांड इज द हाईएस्ट. सैलरीड क्लास, मिड मार्केट प्रोडक्ट goes much better and therefore very similar to our Bangalore market and therefore very excited about Pune.
जी सर। सर एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे डिमांड के ट्रेंड में कि अभी ये जो हमें डिमांड में थोड़ा शिफ्ट बॉम्बे दिल्ली जैसे मार्केट में देखने को मिला है, जहाँ पर लोग बिगर स्पेस के लिए रेसिडेंशियल में बिगर स्पेस ढूंढ रहे हैं, बड़े घर ढूंढ रहे हैं, लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर ज़्यादा रुझान आ रहा है। साउथ के मार्केट में इसको लेकर कैसी डिमांड है, और यहाँ पर आपको डिमांड और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है? डिमांड ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने का एक्सपेक्टेशंस है. अंडरलाइंग मार्केट ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. परचेसिंग पावर इंप्रूव हो रहा है, प्राइसेस स्टेबल है, एनुअल इंक्रीज इज अबाउट 8 to 9% in the market, and cost of fund is not going up. Our last factor is the job uncertainty is not there in terms of software, pharma, or in Chennai market में industrials, automotives, सब सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं. सो परचेसिंग पावर है, प्राइसेस स्टेबल है, देयरफॉर डिमांड का एक ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग है. बैंगलोर इज बेटर देन चेन्नई, एंड बट बैंगलोर एंड पुणे विल बी अ वेरी स्ट्रांग मार्केट फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years. सर अगर ये डिमांड को मैं दो सेगमेंट में सेग्रीगेट करूँ, एक अफोर्डेबल और लग्जूरियस, तो कौन से सेगमेंट में अभी ज़्यादा डिमांड देखने को आपको मिल रही है, और कहाँ पर आपको ये डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में? हमारा फोकस है मिड मार्केट प्रोडक्ट, मिड मार्केट एंड मिड मार्केट प्रीमियम. उसमें स्ट्रॉन्गर आउटलुक है क्योंकि ये एंड यूजर ड्रिवन है. Luxury market यस typically has a large volatility. When capital markets do well, luxury do well. You know, it is linked to various other parameters. लेकिन मिड मार्केट में एंड यूजर ड्रिवन है, सैलरीड क्लास है, उनको घर लेना है. इट इज अ चॉइस बिटवीन अ लीज्ड हाउस और अ रेंटल हाउस वर्सेस अ ओन हाउस. Therefore, purchasing, that's why I said purchasing power, cost of owning a home, those are the important price of the product is important factors than the return from capital market or other sources of capital, other returns. Therefore, over the last 2 years, we have seen luxury actually taking off well. All the inventories have gone down. Shriram does not have a meaningful presence in luxury segment. We are mostly 85% of the product portfolio is in mid market and mid market premium. O segment is normally less volatile. Mid market is a less volatile segment because end user driven. And therefore, we think that market will continue to do well as long as the economy is doing well. GDP growth है, mid market growth का होगा. और residential as a whole is an upsurge or upswing. इंडस्ट्री 2-3 साल से अच्छा कर रहा है, और डिमांड और 3-4 साल के लिए स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिख रहा है. तो ओवरऑल वी सी अ वेरी प्रॉमिसिंग पाथ फॉर अस. Larger branded player is a theme in the market. Customers are not wanting small brands and small players because of uncertainty, timely delivery, and other factors. Given the circumstances, I think large branded players have a big opportunity in front of us for the next 3 to 5 years. Being we are one of the top 3 players in each of the market, Bangalore, Chennai, or Kolkata, we are one of the top 3 players, and therefore we see a big opportunity for us to grow. इसीलिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट करेंगे नेक्स्ट ईयर, और 3-4 साल में 7-8 मिलियन स्क्वायर फीट लेवल तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं. सर एंड आई होप यू विल अचीव दैट टारगेट. एंड सर द लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट सर कि आने वाली है FY25 में अभी तक आपके कितने कोई लॉन्चेस पाइपलाइन में है, या 1-2 क्वार्टर के अंदर जो तुरंत लॉन्च होने वाले हैं, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स अभी रेडी है? हमारा 9 प्रोजेक्ट लॉन्च का टारगेट है. ड्यूरिंग दिस फिस्कल फाइनेंशियल ईयर वी लॉन्च 9 प्रोजेक्ट्स. Q1 में सिर्फ एक ही पुणे विल बी द ओनली प्रोजेक्ट. पुणे में लॉन्च करेंगे Q1 में. Q2 में एक लॉन्च बैंगलोर में टारगेटेड है. उसके बाद 3-4 लॉन्चेस है Q3 में, और 3 लॉन्चेस है Q4 में. Q1, Q2, Q3 लॉन्चेस का प्रोजेक्ट सब रेडी है. अप्रूवल लास्ट स्टेज में है. अप्रूवल आते ही रेरा रजिस्टर करेंगे और लॉन्च करेंगे. So launch readiness is there, and Q4 projects are still getting ready. By the time we reach Q2, Q3, we will be ready with those projects as well. So 9 launches है, 6 मिलियन स्क्वायर फीट का सप्लाई है, नया लॉन्चेस है. वो उसमें से हम लोग 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स का टारगेट कर रहे हैं. और अपना ओपनिंग इन्वेंट्री था 5 मिलियन का एज ऑफ 1 अप्रैल. उसमें से बाकी सेल्स वॉल्यूम आएगा. पूरा साल का 5.2 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का टारगेट अचीव करने का इंटरनल टारगेट चल रहा है.
जी सर, एंड सर थैंक यू सो मच टू जॉइन अस एंड शेयरिंग दिस ऑल डिटेल्स। और सर हम यही आशा रखेंगे कि आने वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे और हम हर एक क्वार्टर पे इसी तरीके से आपसे सर अपडेट ले पाए। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन विद सीएनबी Thank समाचार। you. Thank you so much.